وبرکاتہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا تعریف و ثنا کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا،
ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پہ رزق پہنچانے والا ہے، علیم بذات الصدور اور سمیع بصیر ہے۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا کے پکیزہ کلمات کے بعد بے شمار لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف الف مرتن فی کل ذرتن درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، آج کی یہ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس، جس کا خطبہ جمعۃ المبارکہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، میں آپ کے سامنے نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جو مقاصد ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، انتہائی اختصار کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اپنی تمام توجہ کو میری طرف مرکوز رکھتے ہوئے باتوں کو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ میں جو قرآن مجید فرقان حمید کا مقام آپ کے سامنے جو میں نے تلاوت کیا ہے، رب کائنات نے اس آیت مقدسہ کے اندر، اس آیت مطہرہ کے اندر نبی کائنات، کونین کے تاجور، سید الثقلین کی آمد کے کچھ مقاصد بیان کیے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ نے جو مبعوث فرمایا ہے، آپ کے مقصد اس کائنات میں آنے کا کیا تھا۔ آئیے تاریخ کے دریچوں سے اگر ہم تاریخ کے دریچوں میں جھانکیں تو یہ بات روز روشن کی طرح نظر آتی ہے کہ آج سے ہزاروں سال قبل جب ابراہیم خلیل اللہ نے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی ایسے اپنے ہاتھوں کو رب کبریا کے سامنے اٹھا دیا اور اللہ سے التجا کی، فریاد کی، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سما، ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے والا ہمیں ایک امام عطا فرما دے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا آج سے ہزاروں سال قبل کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر مانگی تھی، رب کائنات نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دے، ایک رسول ان کے اندر مبعوث کر دے، اور وہ رسول کون ہو، اس کی صفات کیا ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ انہی میں سے ہو، کہیں باہر سے نہ آئے، انہی کے رشتہ داروں میں سے ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا آقا ہو۔ اللہ ایسا رسول، ایسا نبی، ایسا پیغمبر ان کے اندر مبعوث فرمانا، منہم جو انہی میں سے ہو، کرے کیا، یتلو علیہم آیاتکا، اللہ تیری آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم دینے والا ہو، حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرنے والا ہو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ دعا میری بڑی ہے، میں نے بہت بڑی نعمت تجھ سے مانگی ہے، نبیوں کا امام تجھ سے مانگا ہے، امام الرسل مانگا ہے، خاتم النبیین مانگا ہے،
नबियों का नबी मांगा है, रसूलों का रसूल मांगा है, सारी कायनात से आला व अशरफ अल्लाह मैंने तुझसे मांगा है। लेकिन अल्लाह मांगा किससे है? इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, अल्लाह वो अता करने पे तू कादिर है, तू वो अता कर देगा। अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ, काबतुल्लाह बना दिया है, अब इसको आबाद करने वाला इमाम अता कर दे। उसकी सिफात ये हो, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, इन सिफात का हामिल अल्लाह हमें इमाम अता फरमा दे। और जब अल्लाह ने इमाम कायनात को भेजा, नबी आखिरुज़ ज़मां को भेजा, 9 रबीउल अव्वल थी, 571 ईस्वी थी। हाँ 571 ईस्वी, सोमवार का दिन था, सुबह सादक तलू हो रही थी, रात अपनी तारीकियां लेके जा रही थी, सुबह अपनी रोशनियां फैला रही थी। जब अल्लाह ने इमाम कायनात को, रहमत कायनात को इस दुनिया के अंदर हजरत आमना की गोद के अंदर नमूदार फरमाया, कायनात के इमाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया, जिस तरह रात की तारीकियां झट रही हैं, हाँ बिल्कुल इसी तरह अब शिरक के जो है, बिदत के जो अंधेरे हैं वो भी झटने वाले हैं, वो भी खत्म होने वाले हैं। ये नबी आया ही इसलिए है ताकि शिरक को खत्म कर दे, बिदअत को खत्म कर दे, खराफात को खत्म कर दे, रात की तारीकियों को मिटा के सुबह की रोशनियां और उजाले दुनिया में फैला दे। इसलिए ये नबी आए हैं। जब वो नबी आए, वो पैगंबर आए, वो रसूल इस कायनात के अंदर आए, तो अल्लाह ने वो सिफात बयान फरमाई जिन सिफात के हामिल नबी की दुआ इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मांगी थी, इस्माइल ज़बीउल्लाह ने आमीन कह के हज़रत इब्राहिम की दुआ के अंदर शामिल हुए थे। वही सिफात का तज़किरा किया, कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ऐ प्यारे इब्राहिम, तूने मुझसे नबी मांगा है, रसूल मांगा है, पैगंबर मांगा है, इमाम ऐसा मांगा है, मैं तुझे वो नबी अता करने लगा हूँ, वो पैगंबर अता करने लगा हूँ, वो रसूल अता करने लगा हूँ, वो इमाम अता करने लगा हूँ। मिन अनफुसिहिम, और तुम्हारी ही जानों में से तुम्हारे पास आएगा। हाँ ये मेरा नबी तुम्हारे ऊपर अल्लाह का एहसान है, अल्लाह एहसान जता रहे हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है, इमाम कायनात अता करके, सैयदुल मुरसलीन अता करके, खातिमुन नबीयीन अता करके, नबियों का नबी अता करके अल्लाह ने मोमिनों के ऊपर एहसान किया है। हाँ कोटली नवानिया वालों, अल्लाह ने आपके ऊपर एहसान किया है, बद्दोमल्ली के बासियों पर अल्लाह ने इनाम किया है, पाकिस्तान में बसने वालों पर अल्लाह ने इनाम किया है, रूए जमीन पर जहां जहां पे मोमन बसते हैं अल्लाह ने उनके ऊपर इनाम किया है कि अल्लाह ने इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अता किया है। ये अल्लाह का एहसान है, दुनिया माने या ना माने, ये अल्लाह का एहसान है जो अल्लाह ने एहसान किया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करके। अल्लाह तूने ये एहसान तो हमारे ऊपर कर दिया है, अब ये नबी करता क्या है, इस नबी की सिफात क्या है? अल्लाह ने पहली सिफत वही बयान की जो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मांगी थी। अल्लाह ऐसा इमाम देना, ऐसा रसूल देना, काबे का इमाम ऐसा हमें अता करना, यतलू अलैहिम आयातिही, वो उस अल्लाह की आयात की तिलावत करने वाला हो। मेरे नबी की आमद का पहला मकसद क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयात की तिलावत करना। मैं फिरका वारियत फैलाने का आदी नहीं, मेरी दावत मोहब्बत की है, मेरा पैगाम मोहब्बत का है। मैं बताना चाहता हूं, लोगों को आगाह करना चाहता हूं, जश्न मनाने वालों को भी बताना चाहता हूं, दूसरों को भी आगाह करना चाहता हूं। अगर प्यार है आमीना के लाल से, अगर गुलामी का दावा है इमाम कायनात से कि हम गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, अगर ये तुम्हारा दावा है, नारा है, तो फिर आइए उस नारे का अमली इजहार ये है कि अल्लाह ने जो नबी दिया है उस नबी का वसफ ये है, खूबी ये है, यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयात की तिलावत करता है। अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने कुरान की तिलावतें की हैं। आपने हजर में भी कुरान पढ़ा है, आपने सफर में भी कुरान पढ़ा है, आपने सुबह भी कुरान की तिलावतें की हैं, आपने शाम को भी कुरान की तिलावतें की हैं, आपने फजर में भी कुरान की तिलावतें की हैं,
जोहर में भी कुरान की तिलावतें की हैं, असर में भी कुरान की तिलावतें की हैं, मगरिब में भी कुरान की तिलावतें की हैं, इशा में भी कुरान की तिलावतें की हैं। आपने सुन्नतों में भी कुरान की तिलावतें की हैं, आपने नफलों में भी कुरान की तिलावतें की हैं, आपने क़ियामुल लैल में भी कुरान की तिलावतें की हैं, तहज्जुद के अंदर भी कुरान की तिलावतें की हैं। मैं कुर्बान जाऊं इमाम कायनात पे, रहमतुल लिल आलमीन पे, यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह के कुरान की आयतें कैसे पढ़ते थे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह के घर में था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ही था। रात को रसूलुल्लाह उठते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमाते हैं, वुजू करने के बाद आप मुसल्ले पे आके खड़े हो गए, आपने नमाज शुरू कर ली। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं भी रसूलुल्लाह के साथ, जरा कान खोल के सुनिएगा, दिलो दिमाग के अंदर इस हदीस मुबारका को जगह दीजिएगा और पैगाम मुस्तफा भी समाज फरमाइएगा। नबी की आमद का मकसद भी पल्ले बांध के ले जाइए। रसूलुल्लाह की आमद का मकसद क्या है? हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने भी वुजू बनाया, वुजू बनाने के बाद रसूलुल्लाह के साथ आके खड़ा हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह फातिहा पढ़ी है, सूरह फातिहा के बाद आप अल्लाह के कुरान की तिलावत करनी शुरू कर देते हैं। आपने सूरह अल बकरा पढ़ी, सूरह अल बकरा पढ़ी। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मोहब्बत के दावे तो सभी करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह से प्यार है, हम नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के साथ खड़ा हूं, तहज्जुद की नमाज नबी रहमत अता फरमा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह अल बकरा शुरू की, आप तिलावत करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। हुज़ैफा कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, रुकू नहीं कर रहे, शायद आप 100 आयात की तिलावत करेंगे, 100 आयात की तिलावत के बाद आप रुकू चले जाएंगे। हजरत हुज़ैफा कहते हैं लेकिन 100 आयतें आप पढ़ चुके, आगे पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल बकरा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे, आधी सूरह बकरा आप पहली रकत में पढ़े, आधी सूरह अल बकरा आप दूसरी रकत के अंदर तिलावत फरमाएंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह के कुरान की आयतों की तिलावत कैसे करते हैं। हजरत हुज़ैफा कहते हैं आधी सूरह अल बकरा भी आप पढ़ जाते हैं। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने कहा शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 आयात तिलावत करें, 200 आयात पढ़ने के बाद आप रुकू करेंगे। कहते हैं 200 आयात भी मुकम्मल हो गई सूरह अल बकरा, मैंने सोचा सूरह अल बकरा आप मुकम्मल पढ़ लेंगे, सूरह अल बकरा पढ़ने के बाद फिर आप रुकू करेंगे। हजरत हुज़ैफा कहते हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने की बजाय आपने सूरह अन-निसा शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने सूरह अन-निसा शुरू कर दी। तरतीब के एतबार से सूरह अल बकरा के बाद सूरह आले इमरान आती है, लेकिन हदीस मुबारक में हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं आपने सूरह अन-निसा पढ़ी, मैंने सोचा सूरह अन-निसा आप पढ़ेंगे फिर आप रुकू चले जाएंगे, लेकिन आपने सूरह अन-निसा मुकम्मल करने के बाद सूरह आले इमरान आपने पढ़नी शुरू कर दी है। हाँ हाँ, नबी रहमत कायनात के इमाम ने पहली रकत के अंदर, एक ही रकत के अंदर सूरह अल बकरा की मुकम्मल तिलावत की, सूरह आले इमरान की मुकम्मल तिलावत की, सूरह अन-निसा की मुकम्मल तिलावत की। आप में से हुफ़ाज़े किराम मौजूद हैं, उन्हें पता है कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये सूरतें जो हैं कितनी बड़ी हैं, 5 रुकुओं के ऊपर मुश्तमिल है। ये तमाम सूरतें, 3 सूरतें कुरान मजीद की बड़ी सूरतें रसूल कायनात ने सिर्फ एक ही रकत के अंदर तिलावत फरमा दी। माशाअल्लाह, यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयात की तिलावत करने वाला नबी। सहाबा ने कोट किया है आप मगरिब में ये पढ़ते थे, आप इशा में ये पढ़ते थे, फला रकत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने ये रकत तिलावत की है, फला मुकाम पे ये पढ़ी है। आप कुतुबे हदीस खंगाल मारे, आपको पता चल जाएगा। मेरे आका जब सवारी पे सवार होते थे, सवारी पे सवार होके जा रहे हैं, सफर के अंदर है, वहां पे भी रसूलुल्लाह अल्लाह के कुरान की तिलावतें करते हैं। कई सहाबा से रवायात है कि नबी अलैहिस्सलाम फला सफर पर थे, मैंने अपनी सवारी आपके करीब की, नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सुना आप फला सूरत की तिलावत फरमा रहे थे। माशाअल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम हजर में भी तिलावत करते, सफर में भी तिलावत करते, नमाजों में भी
तिलावत करते, खुतबों में भी तिलावत करते। मेरे नबी की तिलावत का अंदाज क्या था? हाँ हाँ, अगर आप देखें नबी कायनात के शब और रोज को, लैलो नहार को, नबी कायनात के उठने को, मेरे आका के बैठने को, हाँ हाँ, आपको कुरान की तिलावतें नजर आएंगी। यतलू अलैहिम आयातिही। अगर मैं सवाल करूं आपसे तो शायद कोई एक आध बंदा हो जो ये कह दे कि मैं रात को उठता हूं, क़ियामुल लैल करता हूं, लंबी लंबी रकअतें पढ़ता हूं, तहज्जुद की नमाज के अंदर मैं सिपारा सिपारा तिलावत कर जाता हूं, मैं दो दो सिपारे तिलावत कर जाता हूं। लेकिन कोई बंदा मुझे ऐसा नजर नहीं आएगा जिससे मैं ये कहूं कि मेरे नबी ने 5.25 सिपारे एक ही रकअत में तिलावत की है। तेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कोई ऐसी एक रकअत भी है कि हम दावा तो मोहब्बत रसूल का करते हैं, गुलामी रसूल का करते हैं, जश्न तो बड़े मनाते हैं, लेकिन तेरी मेरी जिंदगी में एक भी ऐसी नमाज नहीं है जिसमें 5.25 सिपारे तिलावत की। यतलू अलैहिम आयातिही। मेरे नबी की आमद का मकसद समझो, अल्लाह के कुरान की आयात की तिलावत करना मेरे नबी की आमद का मकसद है। अल्लाह ये एहसान जतलाकर कह रहे हैं मैंने नबी इसलिए भेजा है। यतलू अलैहिम आयातिही। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हाथों को उठाया हुआ है और मांग रहे हैं, कहते हैं अल्लाह ऐसा नबी, ऐसा रसूल, ऐसा पैगंबर अता करना, यतलू अलैहिम आयाती का, जो तेरे आयात की तिलावत करने वाला हो, ऐसा नबी अता करना। और मेरे नबी ने तिलावत की है। हाँ हाँ, सफर में भी, हजर में भी, मस्जिद में भी, बाजार में भी मेरे नबी ने तिलावत की है। आप बिस्तर पे आए हैं, उलमा से पूछो, मेरे नबी ने उस वक्त भी तिलावतें की हैं, कुरान मजीद की तिलावत की है, आयाते बय्यानात को पढ़ा है। मैं कुतुब हदीस से देखता हूं तो मुझे पता चलता है नबी कायनात रात को सोने से पहले कभी सूरह अल मुल्क पढ़ रहे हैं, कभी आप हामीम सजदा पढ़ रहे हैं। नबी कायनात कभी सूरह आले इमरान की आखिरी रकू पढ़ रहे हैं, कभी सूरह अल बकरा का आखिरी रकू पढ़ रहे हैं। नबी कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रात को सोने से पहले सूरह काफिरून पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, सूरह नास पढ़ते हैं, सूरह फलक पढ़ते हैं। ये सारी सूरतें पढ़कर मेरे आका अलैहिस्सलाम सोया करते थे। और एक हदीस मुबारक में आता है नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त तक सोते नहीं थे जब तक मुसब्बिहात को नहीं तिलावत कर लिया करते थे। वो कुरान मजीद की सूरतें जिनका आगाज युसब्बिहु या सब्बाहा से होता है उनको मुसब्बिहात कहा जाता है। ये सारी सूरतें रसूलुल्लाह सोने से पहले तिलावत किया करते थे। अगर आप इनको शुमार करें 7 सिपारे बनते हैं। माशाअल्लाह। मेरे आका इतनी अल्लाह के कुरान की आयतों की तिलावत करने वाले। यतलू अलैहिम आयातिही। मैं फिरकावरियत की बात नहीं कर रहा, मैं पूछना चाहता हूं बिला तफरीक मसलिक, मुझे बताओ मोहब्बत का दावा तो सभी को है, कौन इतना कुरान पढ़ता है? किसके घर में इतना कुरान पढ़ा जाता है? ये देहाती माहौल है। कभी देहातों में होता था हमारी माएं बहनें बेटियां सुबह वो अपने जनाब दूध जो है ना उसके अंदर दही के अंदर जनाब वो अपना लस्सी उसकी तैयार करती और साथ सूरह मुजम्मल पढ़ा करती थी, सूरह यासीन की तिलावतें किया करती थी। अब हमारे घरों से कुरान पढ़ने की आवाज नहीं आती, साजों सरंगियों की आवाज आती है, गाने बजाने की आवाज आती है, टीवी की आवाज आती है। अगर आवाज नहीं आती अल्लाह के कुरान की आयाते बयानात की आवाज नहीं आती। जरा सोचे तो सही, कैसा दावा मोहब्बत का, कैसी मोहब्बत है रसूलुल्लाह से, कैसा जश्न है। हमने जश्न तो अपना लिया है, मिशन को तरक कर दिया है। आइए मैं मिशन की बात कर रहा हूं। मिशन अवलियत का हामिल होता है, जश्न की कोई अहमियत नहीं, मिशन की अहमियत है। जश्न तो दुश्मन भी मनाते हैं लेकिन मिशन अबू बकर ने अपनाया है, उमर ने अपनाया है, सिद्दीक ने अपनाया है, फारूक ने अपनाया है, उस्मान जिन्नुरैन ने अपनाया है, अली उल मुर्तजा ने अपनाया है, बिलाल ने अपनाया है, सादो सईद ने अपनाया है, नबी के गुलामों ने मिशन अपनाया है। आइए मिशन अपनाए, जश्न की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह। नबी कायनात का मिशन क्या है? हर घर से अल्लाह के कुरान की तिलावत की आवाजें आए, हर जुबान से अल्लाह के कुरान की तिलावत की आवाजें आए। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था जो एक हरफ कुरान का पढ़ता है अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाते हैं। अलिफ लाम मीम, ये एक हरफ नहीं है, जो इनको पढ़ता है अल्लाह 30 नेकियां अता फरमा देते हैं। हाँ हाँ, आपको जरा झंझोड़ने के लिए, जरा हलाने के लिए, आपके गिरेबानों में दस्तक देने
के लिए ये पैगाम देना चाहता हूं, रसूलुल्लाह की हदीस सुनाना चाहता हूं। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया जो बंदा सोने से पहले 10 आयात की तिलावत नहीं करता ना, उसे गाफिलों में से लिखा जाएगा। क़यामत के दिन वो गाफिल उठाया जाएगा कि दीन से गाफिल था, ये रब से गाफिल था, ये रसूलुल्लाह से गाफिल था, इसने दीन से गफलत का मुजाहरा किया है। जो रात को सोने से पहले कम अज कम 10 आयात की तिलावत नहीं करता, कल क़यामत के दिन गाफिलीन में से उसका इंजाम होगा। आइए रसूलुल्लाह की आमद का मकसद समझें। मेरे आका की आमद का मकसद क्या है? यतलु अलैहिम आयातिही, अल्लाह के कुरान की आयात की तिलावत करना। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हाथों को उठाया हुआ है और अल्लाह के सामने इल्तिजा कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह ऐसा रसूल देना, ऐसा पैगंबर अता करना, ऐसा इमाम अता करना। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो किताब की इन्हें तालीम दे और हिकमत की तालीम दे। अल किताब से मुराद कुरान है, अल हिकमा से मुराद हदीस मुबारक है। ये दो बातें हैं, इकट्ठी जिक्र करने लगा। कुरान सिखाने वाला हो, हदीस सिखाने वाला हो। एक है सिर्फ पढ़ना, तिलावत करना, नाज़िला पढ़ना, जुबानी पढ़ना। एक है कुरान को समझना, कुरान को समझना। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम देना, यह रसूलुल्लाह की आमद का मकसद है। लोगों को कुरान सिखाया जाए, हदीस सिखाई जाए। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे तालीम देने वाला बनाकर भेजा गया है, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है, मुझे टीचर बनाकर भेजा गया है, मुझे सिखाने वाला बनाकर भेजा गया है। मैं अल्लाह का कुरान सिखाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम अपनी अहदीस मुबारका सिखा रहे हैं, उम्मत को समझा रहे हैं। ये तफहीम कुरान की और सुन्नत की, ये नबी कायनात की आमद का मकसद है। कितने घर ऐसे हैं जिनमें कुरान की तालीम दी जा रही है, कितने घर ऐसे हैं जिनमें तालीम मुस्तफा दी जा रही है, हदीस सिखाई जा रही है। मैं तो हैरान होता हूं, कभी अहले हदीसों के घरों से काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं आती थी, आज हमारे घरों में भी काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होना बंद हो गई है। कुरान की तालीम कोई नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की तालीम ही कोई नहीं। मैं किसी से हाथ नहीं खड़े करवाता, जरा अपने जमीर में झांक कर अपने जमीर से फैसला ले, क्या हम अपने घर के अंदर अपनी औलादों को अल्लाह का कुरान सिखा रहे हैं? कौन सा ऐसा घर है आपकी इस बस्ती के अंदर, आपके इस पूरे इलाके के अंदर, तहसील नारोवाल के अंदर, पूरे जिले के अंदर, जिस घर के अंदर रोजाना अल्लाह के कुरान की एक आयत सिखाई जाती हो, नबी अलैहिस्सलाम की कोई एक हदीस पढ़ाई जाती हो? कोई ऐसा घर हमें नजर नहीं आता। फिर दुख नहीं होगा, फिर तकलीफ नहीं होगी, सीना फटेगा नहीं कि दावा मोहब्बत रसूल का है, दावा रसूलुल्लाह से गुलामी का है। लेकिन जो नेमत रसूलुल्लाह लेकर आए हैं, हमने गुलाफों में बंद कर कर ऊंची अलमारियों में रख दिया है। और जहां तक हदीस मुबारका का जिक्र है, हमारे घरों में हदीस की कोई किताबें नजर ही नहीं आती। एक वक्त होता था अहले हदीस का बच्चा बच्चा कहता था बुखारी में ये लिखा है, मुस्लिम में ये लिखा है, मुस्लिम इब्न माजा में ये लिखा है, तिरमिजी में ये लिखा है, हदीसों के हवाले दिया करता था। अब हमें हदीसों की किताबों के नाम भी नहीं आते। कोई एक किताब हमारे घरों में पड़ी हो, अपने घरों में ये पैगाम लेकर जाइएगा। आज की सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से, खुतबा जुमा से ये पैगाम लेकर जाए। हमने अपने घर में तर्जमे वाला कुरान रखना है, हमने खुद भी तर्जमे वाला कुरान पढ़ना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। हदीस की कम अज कम एक किताब हमने अपने घर में जरूर रखनी है, अपने बच्चों को नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें पढ़ानी है इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को हदीसें याद करवाओ। बहुत बड़ा फितने वाला दौर आ रहा है, फितने वाला। आपको शायद इस चीज का इदराक ना हो, लेकिन जो शहरों में लोग बसते हैं ना, उन्हें पता है, या जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाकर पढ़ रहे हैं, उन्हें इस बात का पता है। आज हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर,
कॉलेजों के अंदर बड़े बड़े लेक्चरर प्रोफेसर ऐसे बैठे हुए हैं जो दीन के दुश्मन हैं और लोगों को, बच्चों को दीन से दूर कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं सीधे साफ लफ्जों में कि हदीस मुबारका की कोई जरूरत नहीं है। तालीम दी जा रही है, मुल्हिद बनाया जा रहा है, इल्हाद का फितना उठ रहा है, लादीनियत अपने शिकंजे जकड़ रही है। ऐसे दौर के अंदर अगे अहले हदीस और अहले सुन्ना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, आपकी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली नस्लें वो कुरान को फरामोश कर देंगे, नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन को फरामोश कर देंगे। ये फितने ऐसे नहीं उठ रहे, बहुत बड़ी मजबूती के साथ ये फितने जन्म ले रहे हैं। इल्हाद फैलाया जा रहा है, लादीनियत समझाई जा रही है, कोई मजहब नहीं है, इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। ये तालीम दी जा रही है हमारी नौजवान नस्ल को। हमारी न्यू जनरेशन तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर हमने अपने घरों के अंदर अल्लाह के कुरान और नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तालीम ना दी। और हमेशा इन दो चीजों को याद रखा करें। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, पल्ले बांध लिए हदीस मुबारका। हजरत अबू हुरैरा मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं, मदीना की गलियों में बाजारों के अंदर ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं, लोगों तुम अपने कारोबार में मशगूल हो, तुम अपनी तिजारतें कर रहे हो, खरीदो फरोख्त कर रहे हो, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, दुनियादारी के अंदर मशगूल हो गए हो। मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह की विरासत बट रही है और तुम्हें पता नहीं है। लोग मस्जिद नबवी की तरफ आए कि विरासत रसूलुल्लाह की बट रही है। मस्जिद में आए, कहते अबू हुरैरा यहाँ पे तो कुछ तकसीम नहीं हो रहा, हमने देखा है कोई चीज बांटी नहीं जा रही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वो सुफा पे नहीं देखते, वहां पे अल्लाह का कुरान पढ़ाया जा रहा है, रसूलुल्लाह की हदीस की तालीम दी जा रही है, ये रसूलुल्लाह की विरासत है जो बट रही है। और नबी की विरासत, नबी का विरसा, तेरा बाप जो विरसा छोड़ के जाए, जमीन छोड़ के जाए, जदाद छोड़ के जाए, सोना चांदी छोड़ के जाए, दिनो दिनार छोड़ के जाए, उसके लिए लड़ता है, मरता है, एक दूसरे को मारने तक चला जाता है, रिश्ते नाते तोड़ लेता है कि इसने मुझे पूरा हिस्सा नहीं दिया, मेरा हक नहीं दिया, दुनिया के माल के लिए सबसे किनारा कर कशी इख्तियार कर लेता है। और आज तूने रसूलुल्लाह के विरसे से किनारा कशी कर ली है। आज मसाजिद से आवाजें निकल रही हैं, मदारस से आवाजें आ रही हैं, आइए रसूलुल्लाह के विरसे को हासिल कर ले। हम कहते हैं मौलवी साहब बच्चे को मदरसे में भेजेंगे, फिर ये बनेगा क्या, इसका फायदा क्या होगा? दुनिया के फायदे की बातें, आखिरत के फायदे की कोई बात नहीं है। हाँ, पहली बात यह है रसूलुल्लाह का विरसा बट रहा है, इसे मामूली न समझे, इस विरसे को हासिल करने की कोशिश करें। दूसरी बात, अगर बंदा चाहता है कि आज के इस दौर के अंदर मुझे रसूलुल्लाह की दुआ मिल जाए, आज बंदे आते हैं कहते हैं मोहम्मदी साहब मेरे लिए दुआ करना, कोई आकर कहता है मौलाना बशीर अहमद बशर मल्ली साहब को कि मेरे लिए दुआ करें, कोई मौलाना शाहिद रब्बानी साहब को कहता है हजरत मेरे लिए दुआ करें, उलमाए कराम के पास जाते हैं जिसके बारे में हुस्ने जन रखते हैं, कहते हैं हजरत मेरे लिए दुआ कीजिएगा। लोग दुआ करते भी हैं, करवानी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। आइए मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई बंदा चाहता है कि इस दौर के अंदर मैं रसूलुल्लाह की दुआ हासिल कर लूं, अल्लाह के प्यारे नबी मेरे लिए दुआ कर दे, हाँ, फिर उसके लिए तुझे नबी कायनात की तालीमात की तरफ आना पड़ेगा। मैं तरीका बता के जा रहा हूं, अगर चाहता है इस दौर के अंदर भी नबी की दुआ का मुस्तहिक बन जाए तो तरीका ये है, नबी कायनात ने, रहमत आलम ने, कौनैन के ताजवर ने, सैयदुस सकलैन ने, इमामुल किबलतैन ने, सच्चों के सच्चे नबी ने, पाक बाजों के पाक बाज आका ने ये वादे फरमाया
है, नज़्ज़रल्लाहु इम्राअन समिअ मिन्ना हदीसन, अल्लाह उस बंदे को हमेशा तरो ताजा रखे, अल्लाह उसके चेहरे को हमेशा तरो ताजा रखे, खुशो खुरम रखे। अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह किसके चेहरे को तरो ताजा रखे, किसको हमेशा खुशो खुरम रखे? अल्लाह के प्यारे हबीब, आप किसके लिए दुआ कर रहे हैं? फरमाया समिया मिन्ना हदीसन, जिसने हमारी हदीस को सुना, फहाफिज़हु, फिर उसको याद कर लिया, सुम्मा युबल्लिगुहु, फिर उसको आगे पहुंचा दिया, नबी की हदीस को याद किया, याद करने के बाद आगे पहुंचा दिया। आज 1450 साल के बाद भी उस बंदे को रसूलुल्लाह की दुआएं मिलती है। कायनात के इमाम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, नज़्ज़रल्लाहु इम्रान, अल्लाह उस बंदे के चेहरे को हमेशा तरोताजा रखे, खुश रखे, जो नबी की हदीस को सुने, सुनने के बाद याद करे, फिर आगे पहुंचा दे। वो बंदा नबी की दुआ का मुस्तहिक बन जाता है। ये है पैगाम मुस्तफा, ये है मेरे नबी की आमद का मकसद जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। जश्न को छोड़ो, मिशन को अपनाओ। वो क्या है मिशन? नबी की आमद का मकसद क्या है? अल्लाह के कुरान की आयात की तिलावत करना, ये मेरे नबी की आमद का मकसद है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह के कुरान की तालीम लोगों को देना मेरे नबी की आमद का मकसद है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, लोग कहते हैं कोई एमपीए बन जाए बेहतर हो जाता है, कोई एमएनए बन जाए वो बेहतर हो जाता है, कोई वजीर बन गया वो बेहतर हो गया, कोई जनाब अफसर बन गया वो बेहतर हो गया। नहीं नहीं, मुझे रसूलुल्लाह की जुबान पे ईमान है, मैं नबी कायनात की जुबान से निकलने वाले अल्फाज के ऊपर ईमान रखता हूं। मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर कौन है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखता है और कुरान एसपी, डीएसपी, एमएनए, एमपीए, वजीर मशीर, वजीर आजम, सदर, वो बेहतर नहीं है, वो अफजल नहीं है, वो खैर पर नहीं है। खैर पर वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये नबी का मिशन है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी की आमद का मकसद ये है कि अल्लाह के कुरान की तालीम दी जाए, अल्लाह का कुरान सिखाया जाए, रसूलुल्लाह के फरामीन को सिखाया जाए। हजरत अबू हुरैरा ने सिखाया है, हजरत अबू बकर ने सिखाया है, उमर फारूक ने सिखाया है, उस्मान अली ने सिखाया है, मुहद्दिसीन ने सिखाया है। आज तक हमारे असातिज़ा हम तक सिखाते आए हैं। ये अल्लाह के प्यारे नबी का पैगाम जो हिज्जतुल विदा के मौका पर कौनैन के ताजवर ने दिया था, और आखिरी हज के मौका पर 1.5 लाख के करीब 1,44,000 सहाबा का जमे गफीर था। वहां पे कायनात के इमाम ने ये ऐलान किया था, जो यहाँ पे मौजूद हैं वो मेरा ये पैगाम सुन लें और उन तक ये पैगाम पहुंचा दें जो यहाँ पे मौजूद नहीं। ये पैगाम दिया रसूलुल्लाह ने मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर, मैदान अरफात के अंदर। वो पैगाम गूंजता गूंजता आज कोटली नवानिया में गूंज रहा है। जो यहाँ पे मौजूद है वो नबी का पैगाम उन तक पहुंचा दे जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। नबी की आमद का मकसद वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, लोगों को किताब और हिकमत की तालीम देना। इख्तिसार के साथ बात को आगे बढ़ाओ। नबी कायनात की आमद का चौथा मकसद, पहला मकसद कुरान मजीद की आयात की तिलावत है, दूसरा कुरान की तालीम है, तीसरा हिकमत नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की तालीम देना है, चौथा मकसद ये है वयुज़क्कीहिम, लोगों का तज़किया नफ्स करना। अल्लाह के कुरान ने भी ये कहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सिफ्त बयान की है, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जिस नबी के लिए दुआ की थी उसका इस वसफ और खूबी यही मांगी थी, वयुज़क्कीहिम, अल्लाह तज़किया करने वाला, नफ्स को पाक करने वाला, साफ करने वाला, ताहिर करने वाला, तहारत अता करने वाला, ऐसा नबी अता करना। और अल्लाह के कुरान ने जो एहसान जतलाया वहां पे भी यही सिफ्त का तज़किरा फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम, वो लोगों का तज़किया करता है, पाक साफ करता है। हाँ, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों का तज़किया किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के दिलों के अंदर पड़ी हुई गुनाहों की मोहब्बत को खुरच खुरच के साफ कर दिया है। लोगों के दिलों के अंदर निफाक की बीमारियां उनको खुरच खुरच के साफ कर दिया है। कुफ्र की गलाज़तें जो लोगों के दिलों के अंदर थी खुरच खुरच के उन्हें साफ कर दिया है।
ذات کی جو محبتیں تھی ان کو کھرچ کھرچ کے صاف کیا ہے. دنیا کی محبتیں, دنیا کے جاہ و منصب کی محبتیں جو ان کے دلوں میں تھی صاف کر کے رکھ دی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, صاف کتنا کیا ہے؟ شیشہ اور آئینہ بھی اتنا صاف نہیں جتنا نبی کے صحابہ کے دل صاف ہے. بے شک بے شک, اتنا صاف کیا, اتنا صاف کیا. اتنی گناہوں کی نفرت اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی. ایسا تزکیہ نفس کیا. ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اللہ کے پیارے نبی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے نبی گناہ ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجئے. گناہ کی نفرت دل میں کیسی ہے؟ آ کر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے پیارے نبی گناہ ہو گیا ہے, اب بے چینی ہے, سکون نہیں آ رہا, اب اس گناہ کی وجہ سے تڑپ رہی ہے, اس کے جسم کے اوپر لذت آ رہی ہے. کہتی اللہ کے پیارے نبی گناہ ہو گیا ہے, دنیا میں حد نافذ کر دیجئے, سزا دے دیجئے. دنیا کی سزا برداشت کر لوں گی, آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کے پیارے نبی طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے پیارے نبی پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی اس بچے کا کیا قصور ہے, جا جب بچہ جنم لے پھر آنا. بچے کو جنم دیا, یہ عورت پھر آ گئی, کہتی اللہ کے پیارے حبیب بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب حد نافذ کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بچے کو پالے گا کون, پوسے گا کون, اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا, دودھ کون پلائے گا, جا جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا. یہ عورت چلی گئی, بےتاب کتنی ہے, تڑپ کتنی رہی ہے دل کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تزکیہ کیا ہے, کیسے دلوں کے اندر گناہوں کو نکال کے پھینکا ہے, کیسے کھرچ کھرچ کے دلوں کو صاف شفاف کیا ہے. صرف 6 ماہ کے اندر اس عورت نے بچے کو کھانا کھلانا سکھا دیا. حدیث میں آتا ہے اس بچے کو پکڑے ہوئے رسول اللہ کے پاس لاتی ہے, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, وہ بچہ کھا رہا ہے. کہتی اللہ کے پیارے نبی اب تو یہ بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے, طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے پیارے نبی مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا اس پر حد نافذ کر دو, اس کو پاک کر دیا جائے. یہ ہے وہ طہارت, جو ہے وہ تزکیہ جو رسول کائنات نے, رحمت عالم نے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ تزکیہ ہے جو رسول رحمت نے کیا ہے. کیسا تزکیہ کیا ہے کہ عدی بن حاتم طائی کی بہن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے, قیدن ہو کر آتی ہے, قیدی بن کر سامنے کھڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گزرتے ہیں اور دیکھا کہ یہ خاتون ہے, عورت ہے, اس کے سر سے کپڑا ہٹا ہوا. رسول رحمت نے, کونین کے تاجور نے ایسے اپنی چادر, اپنا وہ چادر, اپنی وہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر چادر جس کا تذکرہ رب کے قرآن نے کیا ہے, کونین کے تاجور نے ایسے اس عورت کے سر کے اوپر اڑا دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے پیارے نبی یہ تو دشمن کی بیٹی ہے, جس دشمن نے اسلام کو بڑے نقصان پہنچائے ہیں اس عدی کی بہن ہے. آپ نے اس عورت کے اوپر اپنی پاک طیب طاہر چادر ڈال دی ہے. رسول رحمت فرماتے ہیں صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے کسی دشمن کی کیوں نہ ہو. یہ طہارت کی ہے, یہ تزکیہ کیا ہے کونین کے تاجور نے, امام القبلتین نے ایسے پاک صاف کیا ہے, ایسے تعلیم دی ہے. یہ عورت تھی بڑی سمجھدار, اپنے قبیلے کے سردار کی بہن تھی, اور اس کا جو باپ تھا نا وہ بھی بہت بڑا سخی تھا جس کو لوگ حاتم طائی کے نام سے یاد کرتے ہیں. حاتم طائی کی بیٹی, عدی بن حاتم طائی کی بہن, بڑی دنا سمجھدار عورت, فوراً کہتی ہے سمجھا کہ یہ تو نبی بڑا پیغمبر, بڑا عظیم ہے, بڑا رحیم کریم ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جس کو رب کا قرآن کہے اس کی رحمت کے کیا کہنے. کہتی ہے آپ اتنے رحیم, اتنی محبت کرنے والے, اتنا پیار کرنے والے. میرا باپ جو تھا نا اس کا نام حاتم طائی تھا, وہ بڑا سخی تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں کیا تو سخی کی بیٹی ہے؟ کہا ہاں میں سخی کی بیٹی ہوں. فرمایا میں محمد بھی سخی ہوں اور سخاوت کو پسند کرتا ہوں. اس نے کہا پھر مجھے آزاد کر دیجئے. رسول اللہ نے فرمایا جا تجھے آزاد کیا. اللہ اکبر کرے, فرمایا جا تجھے آزاد کیا. یہ عورت کہتی اکیلے نہیں جاؤں گی, یہ میرے قبیلے کے جو افراد گرفتار کر کے جنہیں لائے ہو انہیں بھی آزاد کرو.
रसूलुल्लाह ने फरमाया जा तेरे कबीले के अफराद को भी आजाद किया। सुभान अल्लाह। लोग जा रहे हैं, हथकड़ियां खुल गई हैं, जंजीरें काट दी गई हैं, लोग जा रहे हैं। ये औरत वहां पे खड़ी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जाती क्यों नहीं? इसने कहा मैं अपने कबीले के लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं अपने सहाबा को, अपने साथियों को मेरे साथ भेजें, वो मेरे भाई को ढूंढकर उसके सुपुर्द मुझे करके आए, फिर जाऊंगी। अपने कबीले के लोगों पर एतमाद नहीं, मोहम्मद के गुलामों पे एतमाद है। अल्लाह अकबर करे, रसूलुल्लाह के गुलामों पे एतमाद। और कहती क्या है? अपने गुलामों को साथ भेजो। रसूलुल्लाह ने चंद सहाबा की ड्यूटी लगा दी, कहा जाओ इस औरत के साथ इसके भाई को तलाश करो और तलाश करने के बाद उसके सुपुर्द करके इसे लौटाना। अब नबी के सहाबा इस औरत को लेकर जा रहे हैं, अदी बिन हातम ताई को ढूंढ रहे हैं। कबीले से तो वो भागा हुआ था, जंगलों के अंदर ढूंढ रहे। एक मुकाम पे ये भाई मिलता है और ये नबी के सहाबा इस औरत को कहते हैं जा अपने भाई के पास, हम वापस जा रहे हैं। और उधर अदी ने देखा कि मेरी बहन कई मर्दों के साथ, कई मर्द हैं उनके साथ अकेली आ रही है। चाहे ईसाई था, गैरत जिंदा थी, फौरन कहने लगा, बाद में मुसलमान भी हुए, नबी के सहाबी भी बने। ये अभी गैरत में आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं ऐ मेरी बहन, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले ये बता तुझे कई दिन गुजर गए, कई रातें गुजर गई, तूने गैर मर्दों के साथ गुजारी है, बता अपनी इज्जत भी बचा के आई है या इज्जत लुटा के आ गई है। इस बहन ने जो बात कही थी ना, आज के इस खुतबा जुमा की वसातत से सीरतुन नबी का ये पैगाम आपको देना चाहता हूं। वयुज़क्कीहिम, तज़किये नफ्स का पैगाम देना चाहता हूं। आमदे मुस्तफा का मकसद बताना चाहता हूं। इस औरत ने कहा अदी अपनी नजरों को झुका ले, मुझे रब्बे किब्रिया की कसम है, तू मेरा मां जाया है, एक मां के पेट से तूने और मैंने जन्म लिया है, मुझे रब्बे किब्रिया की कसम है, आज तक वो हया तेरी नजरों में मुझे नजर नहीं आई जो मोहम्मद के गुलामों की नजरों में। आज तू जश्न मनाता है और गलियों बाजारों के अंदर इस्लाम की बेटियों बहनों के ऊपर नजरें उठाता है। कितने मुकद्दमात ऐसे होते हैं, कितने वाकियात ऐसे हर शहर और हर इलाके में होते हैं जहां पे इस्मतें तातार होती हैं और औरतों को छेड़ा जाता है, मजाक किए जाते हैं। ये गैरत मुस्लिम का जनाजा नहीं है, ये इस्लाम की गैरत का जनाजा नहीं तो और क्या है? ये नबी की तालीमात के साथ इस्तेहज़ा नहीं तो और क्या है? और रसूलुल्लाह की आमद का मकसद समझो। ये अदी बिन हातम ताई की बहन पैगाम दे रही है कि नबी की तालीम हया वाली थी, तज़किया नफ्स करने वाली थी, दिलों को पाक और साफ करने वाली थी। वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ये पैगाम है, ये दावत है। एक आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह ने 4 मकसद बयान किए। रसूलुल्लाह की आमद का पहला मकसद कुरान की आयात की तिलावत करना। अपना ले, रोजाना हमारे घरों में अल्लाह की आयात की तिलावत होनी चाहिए कि नहीं? ये आमद मुस्तफा का मकसद है, अल्लाह की आयात की तिलावत करना। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान सिखाना, हदीस सिखाना। 3 मकसद। चौथा मकसद वयुज़क्कीहिम, गुनाहों की नफरत दिलों में पैदा करना, ईमान की, अल्लाह से अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जो है वो दिलों के अंदर पैदा करना। चौथा मकसद। आज के खुतबे का आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। आज के दिन की वसातत के साथ नबी रहमत कायनात के इमाम ने अपनी आमद का एक मकसद हदीस मुबारका में भी बयान किया और
और भी कई मकसद है। एक मकसद ये बयान किया, इन्नमा बुइस्तु, मुझे दुनिया के अंदर इसलिए भेजा गया लिमुहिक्किल मज़ामीर, कि मैं आलाते मौसीकी को, मज़ामीर को तोड़ दूं। मुहिक का मतलब होता है मिटा दूं, खत्म कर दूं। मैं दुनिया के अंदर इसलिए आया हूं कि आलाते मौसीकी को खत्म कर दूं, तोड़ के रख दूं। बाजे गाजे साजो सरंगियां ढोल ढमक्के, मैं इनको तोड़ने के लिए दुनिया में आया हूं। नबी की आमद का मकसद क्या है? गाजे बाजे तोड़ दिए जाए, साजो सरंगियां तोड़ दी जाए, ये आलाते मौसीकी तोड़ के रख दिए जाए, इसलिए रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए हैं। लेकिन आज उम्मती जुल्म करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे नबी का पाक नाम, पकीज़ा नाम, तैयब नाम साजो सरंगियों के ऊपर, ढोलों ढमक्कों के ऊपर, साजों के साथ गाया जाता है। कोई नात के ऊपर, जनाब नात के ऊपर नाम लेता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, साथ साथ बज रहा है। कोई कवाली के अंदर रसूलुल्लाह का पाक नाम लेता है। गंदे आलाते मौसीकी के ऊपर रसूलुल्लाह का नाम गुनगुनाया जाता है। जिन आलात को तोड़ने के लिए रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं आलाते मौसीकी के ऊपर नबी का पाक नाम गाया जा रहा है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? और अल्लाह के कुरान ने कहा, वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। ये वो लोग हैं, जो बाज लोग ऐसे हैं जो लहवल हदीस को खरीदते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, लहवल हदीस से मुराद साजो सरंगी हैं, आलाते मौसीकी हैं, गाने बजाने के आलात हैं। जो बंदा इनको खरीदता है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, वो ऐसे लोग हैं जो बगैर इल्म के, उन्हें इल्म नहीं, जाहिल है, जहालत की वजह से वो इन आलाते मौसीकी को खरीद रहे हैं। लेकिन अल्लाह कहते हैं वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, उन्होंने इसको खेल तमाशा बना रखा है। लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, इनके लिए रसवा कर देने वाला अजाब होगा। वजह क्या है? वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब इन पर हमारी आयात की तिलावत की जाती है, वल्ला मुस्तकबिरन, ये तकब्बर करते हुए पलट जाते हैं। कअल्लम यस्मा उज़ुनैहि, गोया कि इनके कानों ने इसे सुना नहीं है। कुरान की तिलावत की जाए, भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं। और जब ये साजो सरंगियां लाते, मौसीकी कवाली गाने बजाने होते हैं, फिर शौक से सुनने के लिए जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फबश्शिरहु, ऐ प्यारे नबी इनको खुशखबरी दे दो। सवाल पैदा होता है, साजो सरंगियां खरीदने वाले, गाने बजाने से मोहब्बत करने वाले, उल्फत रखने वाले, इनके लिए खुशखबरी कैसी है? जाओ सूरह लुकमान उठाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। अल्लाह का कुरान कह रहा है फबश्शिरहु, और प्यारे नबी इनको खुशखबरी दे दो। किस चीज की खुशखबरी? फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक किस्म के अजाब की खुशखबरी दे दो। दर्दनाक अजाब की खुशखबरी है। गाने बजानों से मोहब्बत करने वाले, उल्फतें रखने वाले, इनसे प्यार करने वालों के लिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने गाने बजाने से प्यार नहीं किया, साजो सरंगियों से प्यार नहीं किया। आप तो कानों में उंगलियां डाल लेते थे, जहां पे साजो सरंगियों की आवाज आती थी, गाने बजाने के आलात गुनगुनाए जाते थे, वहां पे कानों में उंगलियां डाल लेते थे। अल्लाह की कसम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को ऐसे जाते हुए देखा, जो अपना सर ऐसे हिला रहा है और गुनगुना रहा है। जिस तरह गाना गाया जाता है, इस तरह गाते हुए जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुजूहु वज़रिबूहु, आप रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन गाने से नफरत कितनी है, गाने बजाने वालों से नफरत कितनी है, गुलगारों से नफरत कितनी है। रसूलुल्लाह ने अपने प्यारे जुबान से इरशाद फरमाया खुजूहु, इसको पकड़ लो, वज़रिबूहु, इसको मारो, वखरिजू मिनल मदीना, इसको पाक शहर मदीने से निकाल दो, फ़इन्नहु शैतान, ये बंदा शैतान है। गाना गाने वाला गुनगुनाता हुआ जा रहा है, रसूलुल्लाह ने मारने का हुक्म दिया, पकड़ने का हुक्म दिया, मदीना से निकालने का हुक्म दिया और कहा कि ये शैतान है। और आज नबी का नाम लेकर जश्न मनाए जाते हैं और आगे आगे ढोल ढमक्के होते हैं, फौजी बैंड होते हैं। और इजहार किस चीज का? मोहब्बत का हो रहा है। मैं नफरत नहीं फैला रहा, मैं नबी की तालीम का पैगाम दे रहा हूं, मैं ये दावत दे रहा हूं, अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है,
यकीनन मोहब्बत है, फिर नबी की मिशन को अपनाएं, नबी की बात को माने, इसी के अंदर निजात है। नबी की निजात, आपका हुक्म, आपका फरमान, जिसके अंदर निजात है वो ये है, इन साजो सरंगियों को छोड़ दो, अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करो, नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन से प्यार किया करो, मोहब्बत किया करो, इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी। ये है नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। मैं आखिर के अंदर अपने भाइयों के हुक्म से सिर्फ आखिरी बात वो करूंगा जिसके बारे में मुझे हुक्म दिया गया कि मिलाद के हवाला से जरूर बयान कीजिए। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी विलादत हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विलादत के दिन मिलाद मनाना, जुलूस निकालना, रैलियां निकालना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत नहीं है। मैं किसी पे अटैक नहीं करना चाहता, सिर्फ अपना मसलक बयान करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता तू क्यों करता है, मैं ये बताना चाहता हूं मैं क्यों नहीं करता। मुझे तुझे पे एतराज नहीं है, तू जो मर्जी कर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझ पर मोहब्बत के जो दावे और लेबल तू लगाना चाहता है कि ये मोहब्बत नहीं करते, ये तेरे खोखले और झूठे दावे हैं। हम हकीकी मोहब्बत करने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के दिन कोई जुलूस नहीं निकाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी मुबारक थी, आपने 63 सालों के अंदर एक दफा भी 12 रबीउल अव्वल को कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई जश्न नहीं मनाया, मदीना की गलियों को नहीं सजाया, कोई रैलियां नहीं निकाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी, 23 साल दौरे नबूवत, 40 साल दौरे नबूवत से पहले 23 साल दौरे नबूवत के अंदर भी रसूलुल्लाह ने एक दिन भी इस जश्न का एहतमाम नहीं किया। 63 दफा पूरी जिंदगी के अंदर नबूवत के द्वार के अंदर 23 दफा यह दिन आया, रसूलुल्लाह ने कोई जश्न नहीं मनाया। नबी अलैहिस्सलाम के बाद नबी के सबसे खास खासुल खास यार जो हजर में भी रसूलुल्लाह के साथी, जो सफर में भी रसूलुल्लाह के साथी, जो हार में भी रसूलुल्लाह के साथी, जो मिजार में भी रसूलुल्लाह के साथी, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर में भी रसूलुल्लाह के साथी होंगे, जन्नत में भी रसूलुल्लाह के साथी होंगे। यह भी पैगाम देना चाहता हूं, कराची के अंदर और क्वेटा के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो गुस्ताखे अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के ऊपर उंगली उठाता है, दुनिया भर के अंदर यह पैगाम उसे दे दिया गया है। पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे से यह सदा निकली है कि हम सिद्दीक के गुलाम हैं, हम सिद्दीक से प्यार करने वाले हैं, सिद्दीक नबी के सबसे बड़े वफादार हैं। यह पैगाम दिया गया कि नहीं दिया गया? गली गली नगर नगर अबू बकर के नारे लगे या नहीं लगे? नबी के सियार की सदाएं दुनिया भर में गूंजी के नहीं गूंजी? ये सिद्दीक अकबर की करामत है कि आज गली गली में अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम के बाद 2 साल खलीफा रहे। उनके 2 साल दौरे खिलाफत के अंदर 2 दफा 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने एक दफा भी जुलूस नहीं निकाला, जश्न नहीं मनाया, गलियां नहीं सजाई, मदीने को नहीं सजाया, मक्के को नहीं सजाया। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं, अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, जिनके बारे में कौनैन के ताजदार ने फरमाया था, अल्लाह ने उमर की जुबान पे हक को जारी कर दी है। लौ काना बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी ने नबी बनना होता अल्लाह खत्ताब के बेटे उमर को नबी बनाता। हाँ वो उमर है, 10 साल से जायद उन्होंने खिलाफत की है, हुकूमत की है। 10 साल दौरे खिलाफत के अंदर हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में 10 दफा 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। हजरत उमर फारूक ने एक दफा भी जश्न नहीं मनाया, जुलूस नहीं निकाला, मक्का की मदीना की गलियों को नहीं सजाया। मैं इसलिए नहीं सजाता, उनके बाद रसूलुल्लाह के बड़े प्यारे सहाबी, खासुल खास सहाबी हजरत उस्मान गनी खलीफा बनते हैं, जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपनी 2 बेटियां अता की, एक के बाद दीगरे दी, और फिर कहा ऐ उस्मान दूसरी बेटी फौत हो गई, कहा उस्मान मेरी 40 बेटियां होती, एक के बाद दीगरे तेरे निकाह में देता जाता। वो उस्मान है, हया वाला उस्मान है, नबी कायनात का सहाबी है। 12 दफा उनके दौरे खिलाफत में 12 साल 12 दिन कम 12 साल उन्होंने खिलाफत की है। 12 दफा 12 रबीउल अव्वल का दिन हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में आया है। एक दफा भी उस्मान ने जुलूस नहीं निकाला, एक दफा भी उस्मान ने मदीना की गलियों को नहीं सजाया, मक्का के बाजारों को नहीं सजाया। हाँ हजरत उस्मान के बाद हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं।
5.5 साल उन्होंने खिलाफत की है। 6 माह हजरत हसन खलीफा रहते हैं, 6 साल बनते हैं बाप बेटे की खिलाफत, 6 दफा हजरत अली के दौरे खिलाफत में, हजरत हसन के दौरे खिलाफत में 6 दफा ये 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। बाप ने भी मिलाद का जुलूस नहीं निकाला, मक्के को नहीं सजाया, गलियों को नहीं सजाया, कूफे के बाजार नहीं सजाए, 6 दफा ये दिन आया, लेकिन उन्होंने किसी के एहतमाम का नहीं किया। फिर उनके बाद हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं, अमीरुल मोमिनीन बनते हैं। 19 साल दौरे खिलाफत है उनका। 19 साल दौरे खिलाफत में 19 दफा ये दिन आता है, 19 दफा दिन आया। एक दफा भी हजरत अमीर मुआविया ने इस दिन के अंदर जश्न नहीं मनाया, जुलूस नहीं निकाला, मक्का मदीना के बाजारों को नहीं सजाया, कूफा के बाजार नहीं सजाए, दमिश्क के बाजार नहीं सजाए। 19 साल हुकूमत की है, 19 साल दौरे मुबारक में 19 दफा 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। दौरे सहाबा देखें, तकरीबन 110 साल नबी का आखिरी सहाबी 110 हिजरी में फौत होता है। 110 साल दौरे सहाबा है, 110 दफा ये 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है। नबी के किसी सहाबी ने जुलूस नहीं निकाला, जश्न नहीं मनाया, मदीने को नहीं सजाया, मक्के को नहीं सजाया, घर नहीं सजाए। उन्होंने रसूलुल्लाह का के बारे में जश्न वाला प्रोग्राम नहीं बनाया, बल्कि मिशन को अपनाने वाला प्रोग्राम बनाया। इसलिए अहले हदीस जश्न नहीं मनाते, जुलूस नहीं निकालते, गलियां बाजार नहीं सजाते, क्योंकि अबू बकर ने नहीं सजाई, उस्मान ने नहीं सजाई, उमर फारूक ने नहीं सजाई, अली उल मुर्तजा ने नहीं सजाई, नबी के सहाबा ने ये काम नहीं किए, इसलिए हम नहीं करते। मैं तुझे नहीं कहता तू क्यों करता है, मैं ये कह रहा हूं मैं क्यों नहीं करता, मैं इसलिए नहीं करता। इन पाकबाज हस्तियों ने ये काम नहीं किए, अगर वो करते मैं भी करता, सबसे आगे करता, सबसे बढ़कर करता, सबसे ज्यादा करता, क्योंकि नबी के सहाबा ने नहीं किया, इसलिए मैं भी। और एक बात और बताता जाऊं और बात को खत्म करूं, हक बाजारों के वैसे ही खिलाफ है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे आका ने फरमाया अब गजुल मुकाम, दुनिया में जितने भी मुकाम है ना, जितनी भी जगह है ना, उन तमाम जगहों में से बदतरीन अब गज का लफ्ज बोला, सबसे ज्यादा गंदा मुकाम, सबसे ज्यादा गंदा मुकाम रसूलुल्लाह ने फरमाया अल अस्वाक, बाजार है बाजार। तूने रसूलुल्लाह की आमद पर गंदी जगहों को सजाया। रसूलुल्लाह की आमद की कौन सी खुशी मनाई? नबी कायनात को सबसे ज्यादा पसंद मसाजिद थी। अल्लाह के नजदीक हब्बुल बिलाद इलल्लाही, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब पसंदीदा जगह मसाजिदुहा, मस्जिदें हैं। मस्जिदों से रुख मोड़ लिया, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, वहां पे ना नमाज हो रही है, ना इबादत हो रही है, ना तिलावत कुरान हो रही है, बाजार सजाए हुए हैं और कह रहे हैं सज गए ने गलियां थे बाजार। अस्तगफिरुल्लाह। एक जगह मुझे नापसंद हो, मैं किसी के घर जाऊं, जो जगह मुझे नापसंद हो, लोग मुझे वहां पे बिठा दें, तो मैं क्या कहूंगा? इन्होंने मेरी इज्जत की है। रसूलुल्लाह की आमद पे वो सबसे नबी का नापसंदीदा जगह और मुकाम जो बाजार है, उसको तूने सजा दिया है और कहता है मैं रसूलुल्लाह की आमद की खुशी मना रहा हूं, मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं। ये मोहब्बत का इजहार नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आओ मिशन को अपनाओ जो नबी कायनात ने मिशन दिया है। अल्लाह के कुरान की आयात की तिलावत करना, कुरान सीखना, हदीस को उसको सीखना, तज़किया नफ्स करना, और ये जो गाने बजाने आलाते मुसीकी है इनसे नफरत करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। अल्लाह इस मिशन को हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ये जो पैगाम मैंने आपको दिया है, इस पैगाम को अपनाओगे? अगर कोई एक बंदा भी इस पैगाम को अपना लेगा, इंशाअल्लाह रहमान, मैं ये कहना चाहता हूँ मोहब्बत के साथ खालिद बाजवा साहब को और जनाब उनके साथियों को, रुफका को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर एक बंदा भी इस मिशन को अपना लेगा, अपने घर में रब के कुरान की तिलावत शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह आपकी ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। अल्लाह मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।